आप देख रहे हैं हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार और बहुत ही खास मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अरुण केचितिल्लापिल्ली जो कि एमडी हैं वंडरला हॉलिडेज के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं कि वंडरला हॉलिडेज अम्यूजमेंट पार्क बनाने के कारोबार में है, रिजॉर्ट्स भी चलाती है। इनफैक्ट बेंगलुरु में देश का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क भी चलाती है कंपनी, और इसी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं हम मैनेजमेंट से। अरुण, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली जो पिछला क्वार्टर गया है, द क्वार्टर 1, उसमें काफी ज्यादा असर हमने जीएसटी का देखा। तो अभी फिलहाल कितना इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। और खास तौर पर क्या आपने सरकार को या जीएसटी काउंसिल को अप्रोच किया है जो मौजूदा 28% रेट है जीएसटी का, उसे कम करने के लिए? Yeah, we feel that the 28% GST is too high for the amusement park sector, and because it's a very high capex industry. So we have made some representations as a Association of Amusement Parks to the the GST Council, and we are hoping that we can we will get some favorable outcomes there. But having said that, last quarter we didn't have GST. Of course, GST started from this quarter only. We are yet to see the full impact of it. Looks like there is a bit of a slowdown, but otherwise, I mean, business as usual is continuing. We would definitely like to see the GST rates for amusement parks come down, because we feel that with the new government talking about smart cities and happy people and everything, public entertainment and lung spaces will be an important part of that, is what we feel. And I think the government should encourage the sector, and there are very few amusement parks in India in any case. So Arun, according to you, what is the more comfortable rate for the entertainment industry right now? What have you vouched for should be the rate for GST? See, pre-GST for a company like Wonderla, the effective tax rate was very low. It was less than 15%. It was 10%, or something like that. So we were hoping to do something in that range, but 12% would have been an ideal scenario. Okay. So that is what we are trying to see if it's achievable. 28 we feel is too high, because they have clubbed it with gambling and all those kind of things, which we feel is a very unfair comparison. Okay. It's not really a luxury item either. So is the way we look at it. It is like a it's like a entertainment option, and why is it clubbed at a very high tax rate? Along with casinos and those kind of things, is completely beyond us. But we hope that the government will reconsider this. Absolutely. And I understand, Arun, you did take some price hikes to offset the GST rate hike. About 14% is the price that you actually hiked, but that did also impact the footfalls. So what is the current situation of the footfalls, and do you actually see them improving going ahead in H2? The H2 is hard to say, but H1 doesn't look very, in terms of the lot of disruption that has happened, either because of pricing or because of GST, not related to Wonderla itself. I think there is a bit of this, slowdown is what we are sensing. But I think we will grow marginally for this quarter, and then hopefully in the next, towards the end of the year, we should resume growth, is what we are feeling. We are not seeing degrowth, but in terms of footfalls, we are seeing some degrowth in the parks because of the price hikes that we have taken, and that I already have explained it in the last quarter. Right. So we are not expecting huge growth in this year, post GST or anything. Yes. All right. If you could just expound upon what is the current revenue that you get from ticketing and also from the non-ticketing sphere, and going ahead, if I ask you about FY18, what is the kind of outlook from both these segments? Currently for Wonderla, we get 80% of our revenue from ticketing and 20% from non-ticketing. We are hoping that it will go to 75-25 kind of a ratio in the next 2 to 3 years. We are expanding our offerings in the F&B segment at different price points. We are adding other value-added services like photography, ride photography, and memories of people's visits to the park. So that is becoming a bigger segment.
we are also trying to work digitally to see how we can, make it easier for customers to share their memories online and things like that. So these are all new segments that are coming in, and we hope that non-ticketing spend will slowly grow faster. Okay. Of course, ticket and value-added tickets like fast track tickets, and where you don't stand in the queue. So those are also growing. Right. And also I wanted to ask you a quick comment about your upcoming Chennai park. What is the plan like? Is it on track, and by when do we see it commencing? So for Wonderla, we have always maintained that we would like to do a new park every 2 to 3 years. So that is how. So we have started Hyderabad last year. So we have just completed land acquisition in Chennai. It's too early to say how quickly we will be able to open it, but we are hoping that in about 2.5 years from now we will be able to open the park. So by FY20, late FY20 is what we are hoping. But that is subject to approvals and the government approvals and things like that. So there could be small delays here and there. Okay. We will be mostly more than half of the project cost will come from internal accruals, and a small we will also take some debt, so about 150 crore debt. The cost of the project we are estimating is about 350 crores. So out of which 150 crore will be debt, and the rest will be internal accruals. But again, this depends on the timing of the project. If the project gets pushed a little bit, then obviously we will need less debt. So that is subject to approvals from the Tamil Nadu government. All right. Thanks very much, Arun, for joining us on this very special segment and speaking to us all about the concerns about GST and also about your expansion plans related to your Chennai park. Thanks very much and all the very best for the coming quarterly results as well. चलिए, तो आपने सुना अभी अरुण चितिल्ला पिल्ले को, जिनका मानना है कि फिलहाल कंपनी में जो कंसर्न है वो GST के हाई टैक्सेस को लेते हुए है. डेफिनेटली उनका मानना है कि ये टैक्सेस रिड्यूस होकर 12% तक के आसपास होने चाहिए. उन्होंने अप्रोच भी किया है गवर्नमेंट को, लेकिन जान लेते हैं इस वक्त एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि वंडरला हॉलिडेज में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए. शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर. अभी हमने मैनेजमेंट से बातचीत की, उनका मानना है ऑन ट्रैक है. अभी कमिंग अप प्रोजेक्ट्स जो चेन्नई के हैं FY20 में हम ये शुरू होते हुए देख सकते हैं. हालांकि डेफिनेटली रेगुलेटरी हर्डल्स को उनको देखना होगा, बट ओवरऑल उनका नॉन टिकटिंग स्पेंड वाला कारोबार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं निवेशकों को? और ये काफी अच्छा एक यानी नीश प्ले जैसा है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस में मेरे हिसाब से और कोई लिस्टेड प्ले नहीं है. और आई थिंक ये एक एस्पिरेशनल प्ले भी है, कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग डेमोग्राफिक. तो उस लिहाज से भी है कि अच्छा फिट बनता है, वेयर यूर सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग और प्रमोटिंग कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस. तो ये भी उसमें एक अच्छा फिट बैठ जाता है. और उसके साथ साथ जिस तरह से कंपनी ने कहा भी है कि वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर काफी ठीक लगता है ये स्टॉक. माय फर्स्ट टारगेट ऑन द स्टॉक वुड बी क्लोजर टू 400 रुपीज. ऑल राइट, थैंक्स वेरी मच शर्मिला फॉर योर कमेंट ऑन वंडरला. तो 400 के लेवल्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है. फिलहाल स्पेस में सही है, वंडरला हॉलिडेज में अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की, ऐसा शर्मिला मानती हैं. लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं. आज खास तौर पर टेलीकॉम स्पेस के लिए एक बड़ी खबर आई है. TRAI ने IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस घटा दिए हैं. IUC 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिए हैं. हालांकि इससे कॉल दरें सस्ती होंगी, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, लेकिन इसका टेलीकॉम कंपनी जो प्रेजेंट इनकम्बेंट्स है जैसे भारती एयरटेल, आइडिया, इन सभी को काफी मुश्किलें इनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी. और सुबह से ही हमने काफी एक्सपर्ट से भी जानकारी ली है और उनसे भी मानने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इंडस्ट्री इसको ले रही है. एक और पैमाना आपको बताते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं, हो सकता है इस खबर का असर बैंकिंग स्फीयर पर भी पड़ता हुआ नजर आए. क्या असर होगा इसका, इस पूरी खबर का बताने के लिए हमारे साथ पूजा भी मौजूद है, हमारी इन हाउस बैंकिंग एक्सपर्ट. बताइए पूजा. जी, जैसा कि आपने बताया कि ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, लेकिन बैंकों को ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. टेलीकॉम कंपनियों पर भी इस फैसले का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. हम सुबह से ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी चला रहे थे कि भारती एयरटेल और आइडिया जैसी कंपनियों के एबिटा में काफी ज्यादा असर पड़ेगा. लेकिन बैंकों के संदर्भ में अगर बात करें
तो वहां पर भी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लगातार ये एक पॉइंट रेस करता जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा स्ट्रेस है। और अभी हाल ही में जो आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी, उसके मुताबिक टेलीकॉम में करीब 83,000 करोड़ का एक्सपोजर है बैंकों का टेलीकॉम सेक्टर में, जिसमें से काफी ज्यादा जो लोन है वो स्ट्रेस्ड भी है। अब यहाँ पर हम बात कर दें कि प्राइवेट बैंक जो है उन पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का काफी ज्यादा एक्सपोजर है टेलीकॉम स्पेस में। इंडसइंड बैंक की बात करें तो अगर मार्च 2017 तक का एक्सपोजर देखें तो करीब 4.8% का एक्सपोजर है टोटल लोन बुक का। यस बैंक का काफी बड़ा एक्सपोजर है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ ऐसे प्राइवेट स्पेस है जिनके बारे में हम शायद अंदाजा नहीं लगा रहे थे इनके बुक्स में स्ट्रेस को लेकर, लेकिन इन कुछ बैंकों के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक है जहां पर भी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। कुछ सरकारी बैंक भी हैं, SBI का करीब 2% एक्सपोजर है, यूनियन बैंक का भी एक्सपोजर है। तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका कि टेलीकॉम स्पेस में एक्सपोजर है, और आगे चल के आने वाले तिमाहियों में हम देखेंगे कि इस सेक्टर की वजह से आगे चल के उनके नतीजों पर असर देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली, तो ये एक और कंसर्न बढ़ती हुई नजर आ सकती है बैंकों की तरफ से। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, थैंक्स फॉर स्टेइंग ऑन विद अस। ये काफी बड़ी खबर है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो आज सुबह से ही हम देख भी रहे हैं कि शेयर्स में किस तरीके से हलचल बनी हुई है। अब ये बात आ रही है कि बैंकिंग स्फीयर का जो एक्सपोजर है टेलीकॉम का, और इस तरीके की अगर खबरें आए तो और दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं दोनों टेलीकॉम स्पेस को और बैंकिंग स्पेस को अभी आप इस खबर के जरिए? देखिए, ओवरऑल जो टेलीकॉम स्पेस में देखा जाए, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, एयरटेल की बात करें, तो ओवरऑल यहाँ पर कंसोलिडेशन का दौर मेरे ख्याल से शुरू हो सकता है। जो मूवमेंट भारतीय एयरटेल में देखा गया था, करीबन 360 से लेके 430 तक शेयर गया था, आज के दिन में काफी करेक्शन देखा जा रहा है। तो एक कंसोलिडेशन मेरे ख्याल से हो सकता है नेक्स्ट कुछ मंथ्स में। अवॉइड करना चाहिए सेक्टर में निवेश करने के लिए, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, एटलीस्ट 1 महीने के नजरिए से एक बार अवॉइड करना चाहिए इस सेक्टर को। राइट, अवॉइड करना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर को, ये मानना है आशीष का। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में बने रहने के लिए।